السلام علیکم ناظرین شام 7 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ ڈوڈس مز سپدے آز 8 بجے ماک ڈرل لوکن 15 منٹن مکمل لائٹ بند کرنک ہدایت نیشنل کانفرنس پارٹی بی جے پی ست رلت پی ڈی پی طرف چھ بی جے پی زان اہمیت دن آمت محبوبہ مفتی وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی سندس صدارتس مز جمی میٹنگ عیز حوالہ کرنا آمتین انتظامن ہن آمت سام تو سکینہ یوتوس سند ضلع کپوار تفصیلی دور میٹنگ دوران ممبران اسمبلیو طرف وتلانے آمت کیا مسئلہ ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر ہندین مختلف علاقن مز یہ ماک ڈرلن ہند اہتمام سپد تت ڈوڈاس مز آز انتظامیہ طرف اعلان کرنا آمت یتھ دوران لوکن ون آو تم گھن شامن 8 بجے ماک ڈرل دوران جاری کرنا آمتن ہدایتن پر سختی سان عمل کریں ضروری اعلان تمام حضرات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 31 مئی 2025 بروز سنیچروار بوقت 8 بجے سے 8:15 بجے کے درمیان حفاظتی مشق کے تحت سائرن بجتے ہی ایک ماک ڈرل کی جائے گی۔ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ماک ڈرل کا بھرپور تعاون کریں اور ان باتوں کا خیال رکھیں۔ شام کو 8 بجے سے 8:15 بجے کے درمیان 15 منٹ کے لیے تمام قسم کی لائٹیں کو بند کریں، جیسے انورٹر، ٹارچ، سولر لائٹ، گاڑیوں کی لائٹ، موبائل و دیگر قسم کی لائٹس کو بند رکھیں۔ سب حضرات بشمول ڈرائیور حضرات جو جہاں پر ہوگا وہ وہیں رک جائے گا۔ یہ صرف ایک ماک ڈرل ہے، اسے اصل ایمرجنسی نہ سمجھیں۔ ماک ڈرل کے دوران کسی بھی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی شرکت کرنا ضروری ہے۔ اس ماک ڈرل کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون کریں۔ پی ڈی پی طرف آز پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگرس پہ پروگرام ساز کرنا آمت یت مز پارٹی صدر محبوبہ مفتی تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ میر اعجاز نور محمد تو راجہ وحید دوبارہ پارٹی مز شامل سپد تت پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تمن والیاہن استقبال کرنا آمت یل زن محبوبہ مفتی ات موقع پہ ون پاکستان تو ہندوستان درمیان یدوے کھانا پارٹی مسئلہ انزراونس مز مدد کر سہ پی ڈی پی تکیاز باقی سیاسی جماعت دون ملکن درمیان مذاکرے بڑھاونس وتھ دیوان یل زن تمو نیشنل کانفرنس نقطہ چینی کران ون نیشنل کانفرنس چہ بھارتیہ جنتا پارٹی ست رلت تو لوکن ست تم دھوکہ کران تو پی ڈی پی اخ عوامی جماعت تو پریت وز عوام کس مفادس مز کت کران بی جے پی والی آیا ون خاطر اس بنائیو سرکار ونیو کیا شرط تہد اس بنائے شرط پر سرکار دول بہت مل پتھر بت میون مول ات بی جے پی کس عذابس بیچے دول اس طوفان آز تو آو 2019 من یہ رکایا مفتی محمد سعید صاحب تو میں رکایا بھی طوفان مگر لکن دور فکری کی یم کرنے تمے سات ملیا میٹ مگر اس رکایا نہیں آخر اس لیے آج تم سات اعجاز صاحب یا راجہ وحید صاحب یا نور محمد صاحب یہ بیٹی میں کرسی ہز لالچ کی کرسی ایسے میں خبر کتان ورین چالو اگر میں بی جے پی سی برابر پن ایجنڈا چلایا مگر اخ چیز اگر تو یسان
जम्मू कश्मीर को सिम दलदल में देरो जम्मू कश्मीर को कदल बनन छु बने वो जम्मू का खाड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान में वही छो आप जमात ये जंगस में अमन का करान जो तो वोटर बोलना फारूक साहब है बालाकोट क्या वो तनको ज्यादा गन दस बोलना बुझवा उमर साहब बोलना है ये गो ठीक इंडस वाटर ट्रीटी या सके खत्मी का शर्त खिलाफ मतलब तम कत वन यम जुतुश लगे मगर तथ मुसीबत मज यम सात गोली चलान PDP वाली जमात ये मोन जंग करो बा जंग में गई वन हस पानवे लड़न वन कत गासस गसान सह गास वन तरक्की गले अमुन तुम पता ये टूरिज्म ओतर लच बदी मामूली गो टूरिज्म गो खत्म गो मतलब गो जम्मू कश्मीर मज अमन गु सह हमेशा रोज आज अगर PDP मजबूत करान अम खतर इकतदार जरूरत इकतदार वात पाने पत इकतदार आज ना वो तुम 500 MLA 3 मेंबर पार्लियामेंट क्या करान कत करा यमो ओतर गो वक्फ बिल अनिक यमो क्या कोर यमो तमिस मिनिस्टर्स पोश पूजा कर असेंबली में तो 50 मेंबर तो असेंबली में खड़ा गो फारूक साहब तु न सिर्फ जम्मू कश्मीर सारे हिंदुस्तान सारी खुद सीनियर लीडर मुसलमान मगर मे बासान यमो तथ पन पान थवन कह दिस वक्फस पे रेजोल्यूशन पास गसन इसलिए ये बुजुर्ग वारिया पैसे मे से नाराजगी लड़कन हंद मूजूब मगर अख चीज अगर जम्मू कश्मीर ये मुसीबत मज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान मज कतल शक्ल है कैसे से जम्मू कश्मीर तथ सिर्फ PDP बन बाकी सारी करान सही कत यन बासान अपार खसन नंबर मे वन ओतर यह ना मतलब कि आब बंद करो किस वक्त में वन आब करू सा बंद यह वन जम्मू कश्मीर वजीर आला यजीद अगर पाकिस्तान की सरकार से इख्तिलाफात लुको क्या बे यह आब गसान दोमिस कश्मीर मज दपान पार्लियामेंटस में सोन हिस्से और तम यह आब मगर पता अकि मुल्क अकि रियासत वजीर आला वन सह मुसलमान मेजॉरिटी सह दपुन यह गो ठीक या फारूक साहब वन बालाकोट खुद ज्यादा सा नाजरीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी सदिस सदारतस मज आज जमिस मज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज वक्फ बोर्ड के दोमियो जिम्मेदारों अलाव सिविल तो पुलिस इंतजामी के अहदेदारों शिरकत कर अत मौके पे ईद उल अजहा हवाले कर आमतन इंतजामन हज साम हेन आई तत जमिस मज ईद नमाज अदा करनस हवाले तो फैसला नीन आमुत यल जन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी अत मौके पे वोन वक्फ बोर्डस तात इन वाल खानकाहन तो मस्जिदन मज ईद नमाज मद्देनजर थवित मुकम्मल इंतजाम करने युत जन ईद नमाज अदा करनस दौरान लूकन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। जानते हैं कि ईद का आमद है और आज हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में मीटिंग की। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे सिविल सोसाइटी आइमा हजरात इमाम ख़तीब सारे यहाँ पे थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये हिदायत दी जाए। जानते हैं सारे कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ही अंडर जितने भी हमारे मसाजिद जितने भी हमारी दरगाहें ईदगाह सारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं और जो ये इंतज़ामात ये सारे वक्फ के अंडर होते हैं। चाहे ईद की नमाज है चाहे वो मस्जिद में है ईदगाह में है और किसी दरगाह में भी है तो वो वक्फ के अंडर आता है। और इस सिलसिले में हमारे आइमा हजरात की बहुत बड़ी तादाद जो वक्फ के अंडर हैं तो उनके ज़िम्मे रहती है ये ज़िम्मेदारी ईद की नमाज और बाकी जो मजहबी रसूमात हैं वो आइमा हजरात और इमाम ख़तीब के ये ज़ेर एहतमाम रहता है। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन
उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हमारी सिक्योरिटी, हमारा पावर, हमारा फूड एंड सप्लाईज, JMC, वो सारे यहाँ पे थे। ड्यूकॉम ऑफिस से ADC साहब खुद तशरीफ़ लाए थे और तमाम सिक्योरिटी के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। सब काबीना वजीर सकीना यतूवन ये आज जिले कुपवार दौर कोर यथ दौरान तिमन हमरा वजीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वन तो इंतजामी दोयम जिम्मेदार तक मौजूद तत कुपवारिस मज मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज मेंबरान असम्बली अलाव जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवार तो इंतजामी के जिम्मेदार शिरकत कर। अत मौके पे ये जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तत असम्बली मेंबरों तरफ कई मसले त वतलावन आमत ये जन सकीना यतूवन जराये इबलाग सत कत करान वोन मौजूद अवामी हुकूमत तरफ आम लुकन राहत वातनावनस हवाले प्रथ कह कदम तुलन तो जिले कुपवारिस मज असम्बली मेंबरों तरफ वतलावन आमत मसले अंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन जिले कन लुकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। जब ये सरकार बनी, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट्स अलाट किए गए हैं ताकि उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हम लोग सुपरविज़न कर सकें, देख सकें कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे हैं, ऑन गोइंग कहाँ है, कहाँ पे क्या नए प्रोजेक्ट्स उठाने हैं। पावर सेक्टर हो, R&B सेक्टर हो, चाहे सोशल वेलफेयर सेक्टर हो। इस मीटिंग का मेन जो मकसद था वो यही था कि ताकि डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी ले सके और ऑनरेबल MLA साहिबान जो थे और हमारे जो है ऑनरेबल CM साहब के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र साहब नासिर असलम वानी साहब, हम सब का यही मकसद था कि लोगों के बारे में जो स्कीम्स सरकार इम्प्लीमेंट कर रही हैं उन स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकें। बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनका टाइम लाइन है उस टाइम लाइन के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट होने चाहिए। नहीं देखिए, आप मीटिंग्स का ये फ़ायदा रहता है, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल जो फंड्स डिस्ट्रिक्ट में है, जो उसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अपने पैसे हैं। अब सिर्फ आपके पास CDF पैसा तो नहीं है ना, बाकी रूटीन में जो पैसा हेल्थ सेक्टर में आता है, R&B सेक्टर में आता है, एजुकेशन सेक्टर में आता है, या इसी तरह PDD सेक्टर में आता है, PMGSY में जो रूटीन अपना जो पैसा है उनको तो सुपरविजन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक CDF का वो एक महदूद रकम है वो भी हो जाएगा। GMC हंदवारा जो है ऑलरेडी नासिर साहब है यहाँ पे, इनको भी पता है और ऑनरेबल MLA सबको पता है। GMC शिफ्ट के बारे में ऑलरेडी हमारी एक मीटिंग जम्मू में हुई है जिसमें सारे ऑनरेबल MLAs मौजूद थे। चाहे वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, साइट चेंज हो चुका है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको भी चिट्ठी लिखी है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है पीरियड जो है इस कॉलेज का, और बहुत जल्द जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बहुत कंसर्न है इसमें, जल्द इंशाल्लाह इस पे काम शुरू। अब जो है ये फार फ्लंग एरिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, उसके बाद जो डॉक्टर्स कमी है जिस जगह पे है उनको जो है डॉक्टर्स की कमी को यपर मेंबरान असम्बलियों तरफ सकीना यतू सुंद दौर खैर मकदम करान वोनमुत वजीर मौसूफ दरपेश मुश्किलन हवाले जान दिन आमज तो तिमन वमेद मसले अंजरावनस हवाले सरकार तरफ माकूल कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। कि देर रात दुरुस्त आए, आज 7 महीने के बाद ये सरकार जागी। सरकार बनने के बाद आज तक आपने देखा कोई काम नहीं। आज ये रिव्यू मीटिंग में मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज आई, 7 महीने के बाद उनको याद आया कि सरकार बनी है और लोगों के मुश्किलात है। हमने इनके सामने अपने मुश्किलात रखे, चाहे हॉस्पिटल का मामला है, हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, रोड्स की हालत कितनी बुरी है, पानी का मसला है, या बाकी जितने भी मसला है, अभी इरिगेशन का सीज़न है, ये सारे मसले हमने इस सरकार के सामने रखे। तो उम्मीद है कि ये जो आज 7 महीने के बाद जागे, तो मुझे उम्मीद है कि ये इसमें जल्द अज जल्द नोटिस लेके इन कामों की शुरुआत करें। एक बात बताऊं, इलेक्शन में जो भी वादे उमर अब्दुल्ला साहब ने किए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, एक एक करके हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब अपने वादों के बारे में पूरा सीरियस हैं और वो
जल्द अज जल्द हर एक वादे को पूरा करेंगे, लेकिन एक साथ सब वादों को पूरा करना नामुमकिन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम शुक्रगुजार हैं हमारी जो चेयरपर्सन है सकीना यीतू साहिबा, उन्होंने यहाँ आज रिव्यू लिया और तफसीली रिव्यू लिया गया। इतना टाइम लेके मैंने कहा करीबन 5 घंटे ये मीटिंग चली। हर सेक्टर पे तवज्जो दी गई, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, R&B हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ पे जो है तफसीली बात हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी शुरुआत हुई है और इससे यहाँ ज़िले के जो काम काज है उनमें थोड़ी वसअत लगेगी। देखिए, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगी तब तक कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुतमईन नहीं होगा एक यूटी में। लेकिन सरकार की तरफ से या ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जो एक गैप है जो दिख रहा था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिसर्स के दरमियान, उसको ब्रीच किया जाए और हमने जो है हर ऑनरेबल MLA ने जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ किया और हम उम्मीद करते हैं कि इन इश्यूज़। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। इंडोर स्टेडियम बजवनी त्रालस में आज अकमल इंस्टीट्यूट तरफ मदर्स डे हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक, DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह, सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों, स्कूल इंतजामिया, तलब इल्म तो वालिदैन शिरकत कर। अत मौके पे माज हज अहमियत गशन आई तक वन आमुत मोज अल्लाह ताला सिंद न्यामतों मज अख बेहतरीन न्यामत पज मालिस माज हज खदमत करने तिहज ताबेदारी करन युत जन जिंदगी मज ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव बच्चन मयारी तलीम फराहम करने यन प्रोग्रामन हुंद संस कर सठा जरूरी युत जन बच्चे इखलाकी तौर मजबूत बनानस मज आसानी सपदे। अत मौके पे बच्चों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करने आमुत। फारूक साहबन वोन सन सिटीजन काउंसिल चेयरमैन कि यह हसा प्रेथ वरी जूनस मज मनाने मदर्स डे या वालिदहन दह माज हज क्या अजमत आसन सह उजागर करने खतर प्रोग्राम वक्त वक्त कर। मोज तेल प्रेथ कुन माज दर्ज पन वालिदैन बेशक दर्ज, मगर क्या फरमोमुत कि माज खोरन तल जन्नत, मोल अमुक दरवाज। मोजी अकिस बचस बनावन उहद तकदीर बनावन यह बच्चे क्या कर ब्रोट कुन अक्सर आमुत दुनिया मज वुचने यम बड़ अजीमों का के हवाले से जो आज का प्रोग्राम अकमल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किया, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो मजहब भी बोलता है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक श्लोक है उसमें कहते हैं सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जिन्होंने प्रॉफिट को भी पैदा किया, गुरु को भी पैदा किया, हम उस माँ को कैसे भूल सकते हैं। तो माँ के तईन जो ये खराज अकीदत आज है, ये जो प्रोग्राम है, मुझे बड़ी खुशी है। हर साल जून के महीने में मदर्स डे का इनेकाद होता है जो 1917 से मनाया जा रहा है। पहले तो इसका जो जन्म हुआ मदर्स डे मनाने का वो अमेरिका में हुआ। मेंबर असम्बली शांगस रियाज अहमद खान आज वानीगाम, कराद, शेख गुंड तो दोमेन इलाकन दौर कोर्मुत। यथ दौरान लूको तरफ मेंबर मौसूफस कयान मसलन हवाले जान दिन आय। ये मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दुत तीन तरफ वतलान आमत मसलन द्रावनस हवालन संजीदा कदम तुलने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। पनीरी लगाने का मौसम शुरू हुआ है हमारे इलाके में। आरपत जो नाला है वही तो एक फीडिंग एरिया है इस इरिगेशन के लिए। मेरे साथ इस वक्त इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बाकी महकमों के अफसरान भी साथ हैं। हमने वनगाम, शेखगुंड, कराड़ी और कोटगुंड का दौरा किया है। तो नाजरीन, वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।